ਅਨਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਇਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਵਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਵਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਦਾ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਪਰਤਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਦੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਕਣਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਦੀ ਅੱਗ, ਬਾਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਜਾ ਬਹਿਣ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇ। ਦਾਤੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੁੱਠ ਪਵੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਇਹਨੇ ਮੰਗੀ, ਹੇ ਦਾਤਾ, ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਉਹ 7 ਦਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰਾਤ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ਼ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਤੇ 7ਵਾਂ ਦਾਨ ਸੀ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾ। ਆਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ
इस विषय नूं आपां अज अगे तोरीए। करो किरपालता गुरु बख्शी, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दे अंदर सिख शब्द, गुर सिख शब्द, सेवक शब्द, जन दास, ये शब्द कई बारी हजूर ने वरतों विच बाणी विच लिआंदा है। ਅਸੀਂ आम तौर पर इस शब्द की व्याख्या जो करन लगने हैं, गुरु ग्रंथ साहब के शब्द की टेक लईए तो समझ पै जाए भी सिख की परिभाषा की है, कौन है सिख। हजूर ने एक कृपा की है। वैसे सिख का आखिरी अर्थ है कि सिक्ख्या नूं ग्रहण करने वाला। जे आम अर्थ लोकाचारी विच करिए तो अर्थ होणगे सिक्ख्या ग्रहण करने वाला। ते जदों गुरमत की रोशनी विच इस शब्द की व्याख्या करांगे ते इहदे अर्थ होणगे कि गुरु की सिक्खी नूं कमाण वाला, गुरु के उपदेश नूं कमाण वाला। ते सिख शब्द इन्ना विशाल है, मैं कहना इस शब्द का कभी अंत पाए नहीं जा सकता। वो किवें? पहला वचन कि सिक्खी का दान मंगन लगे हैं। जदों सिख शब्द पढ़ने हैं ते आम कोई दुनियादार बंदा कोई गुण ग्रहण करना चाहे, सारी जिंदगी सिख दा रहे ते उस ज्ञान का अंत कोई नहीं। पर जदों गुरु कोई सिक्खी नूं कोई कमान चले, सिक्खी नूं सीखना चाहे, तो मैं बेनती करा ये 1-2 साल की खेड नहीं, ये 3-4 सालों का कोर्स नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब की शब्द की रोशनी विच सिक्खी नूं सीखण लई कई जन्म लग सकते। ये मैं बेनती करनी चाहना, हजूर कृपालू जी ने जदों सिख की परिभाषा दी ते ऐसी बात की, सिख कमाई कर करके गुरु पदवी ते पहुंच गए, पर गुरु पदवी ते बैठे हुए भी सिखां दे चरना की धूड़ लोचते हैं। गुरु पदवी ते मंगते पे ने सिखां की धूड़। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह विराजमान ने सिंघासन ते उन्हां दी लोचा की है कि गुरसिੱਖੀ भाना मन्निया, गुर पूरा पार लंघाए, गुर सिखां की कर धूड़ देख हम पापी भी गत पाए। सिख कितना पूछा होगा। गुरु रामदास कृपालू जी वो आप गुरगद्दी ते विराजमान ने ते धूड़ सिख दी मंगते पे ने। गुरु अर्जुन साहब का एक होर बचन हुंदा है कि जो दीसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। साहब धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों सब तो पहला देखिए कि सिख कहंदे किनू ने गुरमत की रोशनी विच। हजूर ने बाणी विच 2 तुकां विच उत्तर दिता सिख कौन है। सतगुरु का बचन हुंदा है, सो सिख सखा बंधत है भाई, जे गुर कै भाणे विच आवे। एक तुक विच कह दिता सिख भी होवे, भरा भी होवे, मेरा रिश्तेदार भी वो है जिहड़ा गुरु के भाणे विच आउंदा है। ते नाल कह दिता अपने भाणे जो चला भाई, विछड़ चोटा खावे, जिहड़ा अपनी मन मर्जी करदा होवे, ओदा अंदर केवल भटकदा है, ओनू कदी भी टिका नहीं। 2 पंक्तियां में दसिया कि सिख की परिभाषा की। हजूर गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी पढ़ते हैं। मेरे गुरु रामदास जी का एक शब्द पढ़ने, गौड़ी की वार का यह सलोक है। ते मेरा ख्याल हर गुरसिख नूं ये सलोक ये अमृत बचन जुबानी कंठ होने, जुबानी चेते होने। ते देखो एक जिन्ना शब्द ये सुखैन है पढ़न विच, उन्ना जदों कमाई वाले पासे तुरीए ते एक तुक नूं पढ़ के सोचीदा मना कि इन्नी सिक्खी आपां कदी कमा सकांगे। सिक्खी दा दान मंगण आए आ। गुरु रामदास जी ने बचन किया, कहंदे ने सिख दा पहला लक्षण ये वे, क्योंकि अज वो शब्द दोहराना वो विचारना अत जरूरी। कहन लगे गुर सिख दा पहला फर्ज ये वे कि अमृत वेले उठ के जदों अपने बिस्तर नूं त्यागे ते सब तो पहला उहदे हिरदे विच रब दी याद चले। अमृत वेले उठ के पहला वो गुरु गुरु जपे, परत के की करे, उद्यम करके उठ के इशनान करे। इशनान करन तो बाद गुरु दे दिते हुए उपदेश नूं कमाए। जदों दिन चढ़े ते प्यार नाल भेज के गुरु की बाणी पढ़े ते कहंदे जदों फिर सिख सांस ग्रास नाम विच विच जाए ते मेरा गुरु इन्ना कु त्रुटदा है
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੈ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ। ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੈ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਬਾਜ਼ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਸਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ? ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਮੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
महाराज 5 तरह की सिक्खी कमाने वाले केड़े? असी सिक्खी दान मंगण आए आ, केड़े ने सिख जेड़े 5 तरह की सिक्खी कमाते हैं? हजूर ने 5 शब्द वरते सन। पहली सिक्खी है धंधे की, ध्यान दियो। दूसरी सिक्खी है देखा देखी की। तीसरी सिक्खी है हिरस की। चौथी सिक्खी है सिदक की। ते 5वीं सिक्खी है भावना की। सिखा पूछया महाराज ये 5 तरह की सिक्खी ते तुसी कृपा करके दा खुलासा करो भी ये 5 तरह की सिक्खी किवें? हजूर ने कहा पहली सिक्खी है धंधे की। धंधे की दा अर्थ की है कि जे मेरा अपना किसी होर हीला वसीला नहीं, खिमा करो ये हकीकत है ते इनू कहण तो डरना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जे मैं कथा नू एक किरत रूप विच भी सुकिरत रूप विच भी लेना ते मैं इस शब्द नू लगा लवां कि धंधे की सिक्खी हुंदी हुई नहीं। कह लगे एक सिक्खी है वो धंधे की कि कोई कामकार ना चलदा होवे, किसी पासों पुछ पड़ताल ना होवे ते जे पता लग जाए भी सिख बनिया फलानी थां ते नौकरी मिल जाती है। ये हजूर ने बचन कह धंधे की सिक्खी की। सिख बनिया मेरी रोजी चल पैनी है, सिख बनिया मेरे रोटी तुक दा प्रबंध हो जाना है। उस वेले सिक्खी नू धारण कर लेना। साहब कहंदे ने इहनू कहंदे ने ये धंधे की सिक्खी है। ते महाराज कहंदे खिमा करो कि कई बारी सिरे चढ़दी नहीं, क्योंकि जे पेट नू मुख रख के केवल सिक्खी नू कमान तुरांगे, पेट नू मुख रखिया कितों 4 टके वध मिल सकते ने, बंदा उस वेले थिड़के इनू त्याग के दूजे पासे जा सकता है। कह लगे फिर ये बन जाएगा कि रोटियां कारण पूरा ताल आप पछाड़े धरती नाल। इनू साहब ने कहा ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी ए जग सगलो धंधा। इनू हजूर ने बचन कीते ने। कह लगे माया कारण विद्या बेचो जन्म अबिरथा जाई, मन के अंधे आप ना बूझो अवर बुझावो भाई। पहली तरह की सिक्खी धंधे की ते केवल ना शब्द वरतीए कि कीर्तनीय कथावाचक किसी भी फील्ड विच ये पता लगे कि मेरी रोजी केवल सिख बन के मिलती है ते उस वेले धारण कर लैनी ते परत के ये शब्द कहने कि आपां तां केवल किरत वास्ते इनू सिक्खी नू धारण कीता होया है, बाकी सानू होर कोई लोड़ नहीं। गुरु के सिखो इस धंधे की सिक्खी ए वे पहली। हजूर ने दूजा शब्द वरतिया वो सिक्खी है देखा देखी की। देखा देखी दी सिक्खी ए वे असी केड़ा सिक्खी दान मंगना है। वो वे के मान लो किसी भैन भरा ने सिक्खी नू धारण कीता ते रब वल्लों ओदे बिजनेस विच बड़ा लाहा आ गया, ओदी फसल चंगी हो गई, ओदे पुत्र धियां नू चंगे रुतबे नौकरी मिल गई ते मन ने क्या भी मना जे वो सिख बने ने ते किन्ना चंगा होवे तू भी सिख बन जाए ते जेड़े पदार्थ उन्हां दे घर आए ने वो तेरे घर भी एक दिन आ जाणगे। कह लगे ये हुंदा है किसे नू रीस करके केवल पदार्थां नू मुख रख के बाणा पा के तुर पैना, ये वे देखा देखी की सिख देख के तुर पैना। पर एक मैं जरूर अर्ज कर दिया, कई बारी परमात्मा ऐसी खेड वरतांदा है कि बंदा जिस चीज नू लैके सिक्खी कमान वाले पासे तुरदा है ना ओदा कांटा भी बदल दिंदा है। मैं 2 उदाहरण अर्ज करना हुन्ना। बाबा फरीद साहब जिदन रब की बंदगी वाल तुरे ने उन्हें बिल्कुल ये नहीं पूछा मां रब की इबादत करके मिलता की। मां ने कहा कि खुदा की इबादत कर। भाई साहब उन्हें प्रमाण भी लाते पे सन बाबा जी का। ते जदों पूछया मां मैं इबादत करांगा नमाज पढ़ांगा ते रब दिंदा की है ते मां का इको उत्तर सी कि बेटा खान नूं मिठी शक्कर दिंदा है। फरीद साहब बिल्कुल नहीं इस करके तुरे मैनूं रब चाहिदा है। मां इन्नी सियाणी ते विद्वान सी। कभी फरीद साहब का बचन जीवन पढ़ो। 30 साल उस महापुरुष ने वख-वख थाना ते तालीम लई। अखीर ते ख्वाजा बख्तियार काकी को जदों जाना सी 10 साल बाद कमाई करके आउंदे सन ते मां कहंदी सी मेरे लाल जी जिन्ना बड़ा तेरा मुर्शद है उन्ना अजे तेरा भांडा नहीं तैयार होया। इसदा मतलब मां किन्नी को कमाई वाली होवेगी जिन्हों 30 साल बाबे फरीद की कमाई तो बाद जदों ये कमाई करके आउंदे ने हुण कहंदी है मेरे लाल तू ख्वाजा बख्तियार काकी कोल जा हुण तेरा भांडा कुछ को होया अपने मुर्शद की दाद टिकाण दे। एवें नहीं उस मां का योगदान किन्नी मार्फत तक वो पहुंची है। जदों उन्हें पूछा कह लगे मां रब दिंदा की है तुरे कास लई केवल एक शक्कर नूं
ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਪੂਜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਰ ਮੌਲਾ ਕਿਆ ਸਮਝ ਪੜੀ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਛੋੜ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਪ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਅੰਦਰ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਰੇ ਸਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਰਸਨਾ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਸ਼ ਪੈ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਗਸ਼ੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਖਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਗਸ਼ੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੁਜੂ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਤੱਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਪਕੜੀ, ਭਵਾ ਕੇ ਸੋਟੀ ਸੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਾ ਪਏ। ਕਦੇ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਕਦੀ ਤੱਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ ਫਰੀਦ ਬਾਬੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਬਾਰ ਪਰ ਆਏ ਬੈਠਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜਿਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਦੇ ਕੀ, ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਾਂ ਦੇਖੀ ਕੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੀਜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਖਿਰਸੀ ਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ। ਖਿਰਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲਚੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਖਿਰਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਿਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਚੋਪੜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਚੌਂਕੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਚੋਪੜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਚੌਂਕੜੀ। ਖਿਰਸੀ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਾਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿਰਵਾਨ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਟਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਧੰਦੇ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੀਜੀ ਸੀ ਹਿਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ। ਹੁਣ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹਿਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਜਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇ ਸਿਦਕੀ, ਸਿਦਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ। ਸਿਦਕੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਸਾਖੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਢੁਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਣਾ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਲ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਕਲ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਤੇ ਭਲਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੱਤ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟਕਾ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਚਵਾਨੀ ਕੋਈ ਠਿਆਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਢੇਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਢੇਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਖਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਢੇਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚਵਾਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੇਵਲ ਬਾਜ ਮੁਖੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰੇ ਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰੀਏ ਨਾੜੀ ਨਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਅਕਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਜਦੀ ਏ ਧੰਦੇ ਤੋਂ
देखा देखी तो खिरची तो सारिया गल्लां तो ऊपर उठ के फिर वो भी सिदक वाले ते भावना वाले बन जाते। खैर मैं अपने विषय वाल फिर अगे तुरा। असी अज हजूर तो मंगने पे दाता जी कि सानू सिक्खी का दान दिओ। गुरु के सिखा अज गुरु बन का यतन लोग करते ने, सिख बन का यतन कोई टावा टावा करता पे कि मैनू सिक्खी मिल जाए। मेरे गुरु रामदास जी नूं पढ़ो, वो कह लगे धन धन सो गुरस कही है जो सतगुर चरनी जाए पया। गुरु रामदास वडहंस की वार महला चौथा। कह लगे मैं उस गुरसिख नूं धन धन कहांगा जिहड़ा सिख गुरु के चरना भी जा डिगे। धन धन सो गुरसी कही है। कह लगे जिन हर नामा मुख नाम कहा, उस गिरसिख नूं मैं धन धन कहांगा जिहड़ा गुरु कोल जाके बैठ के वाहिगुरू जपदा है। धन धन सो गुरसी कही है। कह लगे जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया, उस गुरसिख नूं मैं धन कहां जिहड़ा गुरु कोल बैठ के नाम सुनदा है, ओहदे मंदर मन नूं आनंद आउंदा है। शब्द वरतिया धन धन सो गुरसिख कही है। कह लगे जिन सतगुरु की सेवा कर, गुरु की सेवा करके हर नाम लिया, जिन्हें नाम ले लिया वो गुरसिख धनता योग है। साहब कृपालू आ धन गुरु अमरदास जी का अज पुरब है। एक तो मेरा सबजैक्ट भी ये सी कि सिखां नूं सिक्खी दान ते राज थोड़ा जिहा टच किया क्योंकि पता सवेरी लगा कि अज धन गुरु अमरदास जी का पुरब जो विशा तैयार सी चित किया अज दाते का पुरब भी मनाइए ते यह भी मंगीए कि सिक्खी का दान मिल जाए। बाबा अमरदास जी उन्हां दा आगमन 1479 नूं पिंड बासर के होया सी। गुरु नानक साहब तो केवल 10 साल छोटे सन। गुरु अंगद साहब तो 25 साल वड्डे सन। मैं चूक मात्र कह रहा जी पुरब दाते दा। हजूर के घर 2 पुत्रियां ते 2 पुत्र सन। बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी 2 पुत्र ने ते गुरु के सिखो बीबी अमरो ते बीबी अनोखी। ये मेरे कृपालू सतगुरु के घर अंदर 2 वाहिगुरू बीबी भानी ते बीबी नानी, बीबी अमरो ते बीबी अनोखी। ये धन गुरु अंगद साहब कृपालू नाल संबंधित। खैर बीबी भानी ते बीबी नानी ये धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दीआं 2 बच्चियां ने। पिता का नाम भाई तेजपान जी है। पिंड बासर के दी धरती ते तकरीबन 19 साल गंगा का इशनान करते रहे ने। गुरु के सिखा जिस वेले लोग अपने घरां विच टिकदे ने उस वेले ये बजुर्ग बाबा सिक्खी का दान मंगण आया सी। कुड़माचारी का नाता पहला भी सी कि गुरु अंगद साहब की बच्ची बीबी अमरो धन गुरु अमरदास कृपालू जी के भतीजे नाल विआही कोई है। अज एक शब्द गुरु नानक साहब का सुनिया ते गुरु नानक साहब की सिक्खी कमान का चाह पैदा हो गया। आए ने खडूर साहब की धरती ते। गुरु अंगद साहब तो 25 साल उम्र करके वड्डे ने। गुरु अंगद साहब तो रिश्तेदारी कुड़माचारी करके वड्डे ने। पर जदों वो धन गुरु अंगद साहब के चरणों में आए ने उथे एक शब्द कहा सी। कह लगे दाता जी बस मेहर करो, अज मैनू अपने चरणों में ढहन दिओ। मैं कुड़माचारी वाली चादर ला के आया, अज मैं नगुरावां ते तेरे दर तो सिक्खी की दात लैण आया। सिखां नूं सिक्खी दान, अज मैं सिक्खी की दात लैण आया। धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह त्रुट पे। देखो उस बजुर्ग की आर बलावल तकीए ते आपां सोचांगे कोई सेवा देणगे कि बैठिया सौखा कोई काम करी जाइए। कुछ दिन कीर्तन सुनिया, कथा सुनी ते अज बाबा अमरदास कृपालू दे मन विच आया मना वेलिया बैठा नहीं, सिक्खी कमा। सिक्खी कहण दा धर्म नहीं, सिक्खी करनी दा धर्म है। ते करा की कोई बजुर्ग हुंदा झाड़ू पकड़दा, कोई होर सियाणा हुंदा ते शायद भांडिया तक सीमित रहिंदा ते सेवा किहड़ी करा। बिखमकार कोई गाखड़ी कार कमावा की कीता। पुछ लिया कि सतगुरु इशनान किहड़े वेले करदे ने। उस 60-62 साल के बजुर्ग ने अपने मोढियां ते गागर रखी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल उस महापुरुष ने गागर ढोई ते इन्नी मेरे दाते की रहमत नाल भिज गए बाबा अमरदास के धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह इन्ने डुल पे ते 3 शब्द कह सन। मैं कई बारी कहना जिदन डिगे सन ते उदन इको गल कही सी, दाता जी अज शरीर पता नहीं जवाब दिंदा पिया है,
अज डिग पिया वा खड्डी विच, उस पासे नहीं जाना। उस वेले किन्नी कमाई सी। एक विद्वान ने तो इत्थों तक लिखे है कि जदों डिगे ने खड्डी दे विच ते पुछया सी कौन, महिमा प्रकाश वार्तक दे शब्द ने, कहने लगे ये होगा अमरू बेनवा, सदा है भटकता फिरता, ना कबू चैन करता। उस औरत का उत्तर सी ये अमरू बेनवा होगा, सदा है भटकता फिरता, ना कबू चैन करता। कहने लगे बकारा हो तो ऐसा हो। इत्थे बकारा दर बेकार नहीं, बकारा दर से जे किसे बोली मारनी है तो इहो जी मारे अगले का सीना चीर के चले जाए। देखो 72 साल का बजुर्ग जदों शब्द सुनिया बकारा हो तो ऐसा हो, गागर नहीं डिगन दी, इको दम भिजा होया गिरदा सी। सुनिया भी मेरे गुरु के घर नूं कहंदा पिया भी इन्नी थां कोई नहीं। आवाज देख के कहने लगे कि पगली तू क्या बकती है मेरे गुरु की शान में, चुप रहो। कहने उसी दम हो गई पागल, इशारा हो तो ऐसा हो। रब जे किते बोल नूं दम दे इन्ना दे। अज डिगे गागर दी लैके खड्डी विच आउणा सिੱਖੀ दान ते हजूर कृपालू जी इंतजार पे करते सन। कहने लगे दाता अज खड्डी विच डिगे आ। हस के कहंदे ने फल जदों पकदे ने ना ते कुदरत दा सुभाए पकण तो बाद धरती ते डिग पैंदे ने। कोई जरूरी नहीं कि डिगे कोई बेकार नहीं। कहंदे ने तुसीं खड्डी विच डिगे हो ते अज तुहानूं खड्डी तो डिग्गियां नूं गुरु नानक दी गद्दी मिलेगी। तुसीं सिर ते गागर ढोई है, ये गागर तुहानूं दुनिया विच उजागर करेगी। लोग कहंदे सन नगुरा है, लोग कहंदे ने बेथावा है। मैं कहना तुसीं टहल कीती है, टहल करन तो बाद तुहानूं महल मिलेगा ते जिन्हां नूं किते भी ढोई नहीं मिलेगी अमरदास जी, उन्हां निथावियां दी थां तुसीं बन जाओगे। जिन्हां निमाणियां नूं किते भी थां नहीं मिलेगी, उन्हां निमाणियां दे मान तुसीं बनोगे। उस वेले कभी तकियो 73 साल दे बजुर्ग दे नेत्र सेजल सन। गुरु अंगद साहब ने कृपा की। मैं इतिहास वाल ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दो झांकियां उन्हां दी जीवन विचों जिन्हां ने सिੱਖੀ मंगी उन्हां दीयां साझियां करनियां चाहना वा। अज गुरु अमरदास गुरु बने ने, पट आए ने मेरे गुरु के दर्शन किए ने। उन्होंने अज क्या दुनिया के लोगो अज गुरु अमरदास का पुरब मनाने पे ना, तो मैं बेनती करा भाई वीर सिंह कहते सन लिखते ने कि जदों पुरब मनाना है, प्यारे की गारेगंढ मनाना है, उदों सवेरे अरदास करिया कर दाता अज तेरा पुरब है, तुसी इस दिन संसार से आए घालना करके तुसी हनेरे दिलों में आके ज्ञान के शब्द के दीवे वाले अज तेरा पुरब मेरे खिरदे में अपने शब्द का प्रकाश कर दे। मैं तेरे दर तो मंगण आया, तेरा पुरब है, मेरी झोली में नाम की सिੱਖੀ की दात पा दे। साहब बाबा अमरदास जी बारे भट्टा ने कुछ बचन कहे ने, वो मैं 2 सवैये अपने साझे करने ने। कहते ने कि बाबा गुरु अमरदास हुण जदों तुरदे ने ते जिस धरती ते बाबा अमरदास जी के चरण पै जाते हैं, कहते ने उस धरती के सारे पाप ही कटे जाते हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब के शब्द नहीं। असीं कहांगे जे भट्टा ने तां एवें गुरु उस्तत विच कह दिता, वो नहीं गुरु के सिखो। इस भट्टां दे सवैयां नूं केवल एवें फोकी उस्तत ना समझो, शब्द की टेक लैके देखो। ते साहब तां कहंदे जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, जिथे रब की बंदगी करने वाले बह जान थां तां वो भागां वाली हो जाती है। ते जिन्हें 13-12 साल गागर ढोई ते गुरु के हुक्म नूं मन्निया, जिथे उहदे चरण पैणगे धरती के पाप क्यों नहीं कटे जाणगे। अज बेनती कर गुरु अमरदास मेरे खिरदे विच चरण टिका दे, मैं तेरी सिੱਖੀ की दात मंगण आया। तवज्जो दिया जे गुरु अमरदास परसिया पोहम पातक विनाश है कि गुरु अमरदास धरती ते चरण रखन ते धरती के पाप दगद हो जाते हैं। गुरु अमरदास परसिया सिद्ध साधक आसास है, तेरे ता चरणा की धूड़ सिद्ध जोगी पे मंगते ने। गुरु अमरदास परसिया पोहम पातक विनाश है, गुरु अमरदास परसिया सिद्ध साधक उसास है। गुरु अमरदास परसिया कहन लगे हुंदा कि ये अंदर का भय दूर हो जाता है, अभाओ लभै गौ चुका है, एक बिन दुगण जो तो रहे, जा समंतर मान वैल है, जाल पा पदार्थ कितड़े। गुरु अमरदास डिठा मिले।
जे धन गुरु अमरदास दे कोई दर्शन करे तो कह लगे मूँह मंगिया मुरादा पाते ने। फिर उन्होंने कहा जी गुरु अमरदास जी को चेते कर, उसे शब्द वरते ने, कह लगे प्यारिया कि चरण ता पर सकिया तो चरण गुरु अमर पवल रहे, हाथ ता पर सकिया तो हाथ लगे गुरु अमर तय, जी ता पर सकिया तो जी गुरु अमर पणीजै, नैन ता पर सकिया तो नैन गुरु अमर पखीजै, सरवण ता पर सकिया तो सरवण गुरु अमर सुणीजै, सकियात सो हियोजित ही बसै गुरु अमरदास निज जगत पेतै, सकियात सो सिर जालप भणै जो सिर निवै गुर अमर नित। उन्हें सिक्खी की दात क्यों नहीं मिलेगी? शब्द वरते ने, कह लगे गुरु के सिखा गुरु अमरदास दे चरनां नूं परस लै, गुरु अमरदास जी दे मार्ग ते चुल चल, तेरे हथ पवित्र होणगे जदों परसेगा, जदों तुरेगा चरण पवित्र होणगे, जदों तू अखां नाल गुरु अमरदास दे दर्शन करेगा नेत्र पवित्र होणगे, जदों कन्नां नाल गुरु अमरदास दे आनंद नूं सुनेगा कंन पवित्र होणगे, जदों तेरे हिरदे विच सिੱਖੀ टिक जाएगी उदों तेरा हिरदा पवित्र हो जाएगा। वो धन है सिर जिहड़ा धन गुरु अमरदास दे चरनां विच रोज चुकदा है। आप कमाई कीती है, हुण तक उन्हां दे दर ते सिੱਖੀ दे दान मंगण किवें आए? दो सिखां दा जरूर मैं उदाहरण देना चाहना। पहला सिख है सत्कार योग बाबा बुढ़ा जी, दूजे सिख ने भाई पारो जी, जिन्हां नूं भाई पारो परमहंस कहा जाता है। ते भाई गुरदास ने उदों उन्हां दी गिनती करदिआं सिखां विच कहा, कहण लगे पारो जुलका परमहंस पूरे सतगुर किरपा धारी। पूरी एक तुक भाई पारो लई दित्ती आप जी दे ज्ञात लई। ये ओही भाई पारो जुलका है जिन्हें गुरु अंगद साहब नूं कदे पुछया सी दाता कि परमहंस की परिभाषा की हुंदी, परमहंस किनू कहिंदे ने? उस वेले दाते ने कहा सी कि परमहंस वो ने जिहड़े जिउंदे जी अपनी देह विचों अपने आप नूं बदेई कर लैण, जिहड़े जिउंदे जी अपनी देह विचों आत्मा नूं तक सकण। परमहंस वो ने जिहड़े गुरमत ते दुरमत दा निखाड़ा कर देण। परमहंस वो ने जिन्हां दी जिंदगी दी खुराक केवल शब्द बनदी है। ते भाई पारो ने पूछा दाता कोई बन नहीं सकता है? ते गुरु अंगद साहब ने क्या पारो गोइंदवाल वाले नूं मिलदा रही, बन दी गल करना एक दिन गुरु नानक तेनू ही बना देणगे। मिलदा रही गोइंदवाल वाले नूं, तेरे ते मेहर होवेगी। गुरु अंगद साहब तो बाद भाई पारो सुल्तानपुर दे नेड़े डल्ला पिंड है, उथों दे वसनीक ने। ते सिख तवारी कहंदी है कि 72 महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी उस वेले डल्ले पिंड विच रहिंदे सन। धन गुरु अमरदास जी जिहड़े किरपा दे पात्र सन। भाई पारो दा एक नेम सी, रोजाना घोड़ी ते चढ़ के उन्होंने डल्ले पिंड तो आना गोइंदवाल साहब की धरती ते उन्होंने बारे पढ़िया कि जदों बाणी पढ़ते सन ना, कहते जिस राह तो निकलते सन इन्नी सुरीली आवाज से इन्ने भिजे सन कि उन्होंने पिछे पिछे पंछी भी डारा बना के उड़ते होंगे सन। आप कहांगे जी किवें? वैसे गल्लां सारियां रुखियां नहीं, असल विच एक कमाई वालियां दे जीवन ने। जे असीं कहीए जी किवें पंछी भी किवें पिछे तुर पए, वो इहदे तुक दे की अर्थ करांगे 184 मेदनी सब सेव करन दा वो जीवन वाला है। जदों असीं कहांगे भी यह किवें, ते गुरु साहब कहंदे शब्द की तसीर ऐसी है कि बीज मंत्र सर्व को ज्ञान है। वो भाई पारो गुरु अमरदास दे वेले उन्हें ब्यास दरिया पार कीता सी ते एक सज्जन जलंधर दा सूबेदार केवल 2 घड़ियां उहदे कोल खलो के उहदी जिंदगी पलट दित्ती सी। फौज छड्ड के गुरु अमरदास दे चरनां विच आके कहंदा सी दाता पारो दी मैं संगत कीती है, अंदर नूं टिका मिलिया है ते तुसीं किरपा करके मैनूं सिੱਖੀ दी दात दिओ। आप नूं पता होवे 22 मंजियां विचों जलंधर दा हाकम अल्लाह यार उन्होंने एक मंजी दी सी, गुरु अमरदास का सिख बनया सी। सिख की संगत करके अज तक वो सिख मंगदा कि सिखां नूं सिੱਖੀ दान गुरु अमरदास त्रुठे ने। भाई पारो नूं आवाज दी ते सूरज प्रकाश विच लिखिया है, कह लगे भाई पारो तू अज मेरा रूप हो चुका है। देखो शब्द सन, तेनू आउण की जरूरत नहीं, तू जिथे भी बह जाएगा गुरु तेरे नाल है। अज भरी संगत में जदों क्या पारो तुसी परमहंस हो, मेरा रूप हो गए हो, ते नाल एक शब्द वरत्या, कह लगे मैं चाहना वा
कि गुरु नानक साहब की गद्दी तुहानू दे दईए। सिख मंगदा की है? मैं बेनती करा तो गुरु के सिखा, तू गद्दी कदी ना मंगी, जे मंगन तुरिया ते गुरु की गोदी मंग लन, क्योंकि गद्दी वाले छिड़क जाते भी। इस गद्दी दर मैं दुनियावी करना पे, गद्दी वाले छिड़कते नहीं, गोदी वालियां नूं कदियां तत्ती वाह भी नहीं लगती हुंदी। बाबा गुरु अमरदास कहन लगे पारो, उथे शब्द ने परमहंस मेरो ही रूप, परम सियानक महा अनूप, बख्शत हूं मैं जग गुरियाई, करो उधार लोक समुदाई। मैं तुहानू गुरता गद्दी देना कि तुसी दुनिया का भला करो। कहते ने भाई पारो संगत विच उठ खलोते, हाथ जोड़ के शब्द वरते ने, कर जोरे पारो प्रग परियो, त्राए त्राए कर बचन उचरियो। कहन लगे दाता जी गुर सिखी मुझ भावे, गुर आई सतगुरै सुहावे, तुसी एक किरपा कर दियो, अज कह दियो पारो अंतले सवास तक तेरी सिखी निभ जाए। बस मैनू सिखी की दात दे विच गुरु अमरदास जी का पुरब है ना, उन्हां तो भी सिख सिखी का दान पे मंगते ने। कर जोरे पारो पग परियो, त्राए त्राए कर बचन उचरियो। कहन लगे दाता जी गुर सिखी मुझ भावे, गुर आई सतगुरै सुहावे, मुझ पर कृपा दृष्टि को धरिए, जे त्रुठे होते गुर सिखी पद बख्शन करिए। मैं अजे भेख दा सिख हां, अज तो बाद तुसी कह दो तू असलीयत विच सिख बन जाए। गुरु के सिखों कैसा सिखी का दान है। साहब कृपालू जी ने दूजा शब्द किया कि बाबे बुढ़े नूं सिखी बड़ी उच्ची है। मैं अगे फिर अर्ज करनी है, केड़ा सिखी का दान सी मंगना, केवल साथी रूप नहीं। बाबे बुढ़े ने एक सन लाई सी गुरु अमरदास जी नूं प्रगट कर लई, पिंड बासर के ते बाहर आके धन गुरु अमरदास जी ने कहा सी कि बाबे बुढ़े के संबंधी कहन लगे, ये भवजल को बोए भारा, ये दुनिया विच बाबा बुढ़ा तू एक जहाज की तरह है, तेरी संगत करके कईयां नूं सिक्खी मिलेगी। कहन लगे ये जग को है बोए भारा, भवजल ते कर है निस्तारा, सिक्खी अवदना किसते पर है, नाम लैत गर विघन सुहरै, तेरे तो अगे कोई सिख नहीं दिसदा, ते अज बाबा जो मंगे देंगे। ते चरण पकड़ के कह लगे जे त्रुठे हो ना, जेड़ी सिक्खी दिती जे मेरी अंतले समय तक निभ जाए। गुरु के सिखो सिक्खी का दान तां मंगया है, की पता इस मन का अवेड़े का किथे ने तिलक जाना, किथे ने थिड़क जाना। गुरु अमरदास भाई पारो मंगदा है ते मुझको गुर सिक्खी भावे। बाबा बुढ़ा जी मंगते ने सिक्खी निभ जाए। केड़ी सिक्खी की दात असी मंगनी है? आओ भाई गुरदास के बचना विचों तको। अज असी कह रहे हैं सिखा नूं सिक्खी दान। भाई साहब कहते सिक्खी दान विच पहली पौड़ी चेते रखी कि कुरबानी तिन्ना गुर सिखा, पिछल राती उठ बहांदे। एवे सिखा नूं सिक्खी दान, कुरबानी तिन्ना गुर सिखा, अमृत वेला सर ना बंदे। कुरबानी तिन्ना गुर सिखा, एक मन होए गुर जाप जपंदे। कुरबानी तिन्ना गुर सिखा, साध संगत मिल जाए जुड़ंदे। कुरबानी तिन्ना गुर सिखा, कह लगे गुरबाणी सुन गाए सुनंदे। कुरबानी तिन्ना गुर सिखा, मन मेली कर मेल मिलंदे। कुरबानी तिन्ना गुर सिखा, भाए भगत गुर पुरब करंदे। गुर सेवा फल सुबल बुलंदे। एवे सिक्खी जिहड़ी असीं रोज मंग के कहने दाता सानूं सिक्खी दा दान दे। सिर्फ ये एक पक्ष है। साहब भाई गुरदास कहते हैं वो सिख जिहड़ा अमृत वेले उठदा है, इशनान करदा है, गुरु के बख्शे हुए जप नूं, गुरु के बख्शे हुए मंत्र नूं जपदा है, संगत विच आउंदा है, गुरबाणी प्रीत नाल सुणदा है, आके मन मेलियां नाल अपनी साझ पांदा है। गुरु का सिख जदों गुरपुरब आउंदा है ते भावना नाल मिलांदा है। इहो जिहा गुर सिखां दी कीती होई सेवा सफल हुंदी है। भाई गुरदास ने एक दूजी पौड़ी कही। वैसे तो उन्होंने बेअंत प्रमाण अर्ज करने ने जेड़े सिक्खी की जाच सिखाते हैं। भाई साहब कहते हैं गुर सिक्खी केड़ी मंगनी है, बाहर दे केवल विखावे वाली नहीं। कह लगे इहो जी अरदास कर जेड़ी गुरु ग्रंथ साहब ने शब्द ने रोशनी तेन दी है। कहते हैं जिहड़ा सिख है ना, ओदा पहला लक्षण ये वे कभी वो आपे दा प्रगटावा नहीं करता। सिक्खी कमान वाला कभी दावे नहीं जे करता। दूजा लक्षण ओदा ये वे कि उन्हें अपनी सुरत विचों कभी गुरु के शब्द नूं वख नहीं होण दिता। इउं कह लो शब्द तो ओदी सुरत कभी उखड़दी नहीं। कहन लगे तीजा ओदा गुण ये वे
कि जिन्नी देर तक गुरु नूं देख ना ले उन्नी देर तक किसी वाल झाती नहीं मारदा पिया। ओहदा तीजा गुण यह वे, चार बंदियां विच बहिंदा है ते चुप करके बैठा है। लोग समझते हैं चुप गड़ुप बोलता कोई नहीं, पर किन्ने दुनिया नूं की पता वो बुल्लां नाल वाहिगुरू गुरमंत्र दा प्याला लगा है, वो बिना बोलन तो उस नाम के प्याले विचों रस ले जाता है। ये वे सिक्खी जिहड़ी असीं मंगने पे हां। भाई साहब ने शब्द वरते ने, कहन लगे गुर सिक्खी गुर सिख सुन अंदर सियाणा बाहर भोला। शब्द सुरत सावधान होए बिन गुर शब्द ना सुनी बोला। सतगुरु दर्शन देखना साध संगत बिन अन्ना खोला। अगर शब्द वरते ने वाहिगुरू गुर शब्द लै पिरम प्याला चुप च बोला। पैरी पैपा खा कोई चरण धोए चरनाउदक चोला। जो अंदरों प्याले नाम दे नूं पींदा ते गुरु के सिखो रौला नहीं पांदा, सब दे चरना की खाक बन जाता है। तुसीं सियाणे बैठे हो, भाई गुरदास जी की 12वीं वार जरूर पढ़ियो, 11वीं ते 12वीं। 11वीं वार में तो उन्होंने गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अंगद साहब तक, गुरु हरगोबिंद साहब तक सिखा का जिक्र किया। 12वीं वार जी है ना, वो असल में सिख की रहत मर्यादा है कि सिख ने की करना है, सिखी की। उत्थे भाई साहब ने 11वीं वार जो शुरू की है ना, वो दूजी पौड़ी जी पहली तुक है, वो तुक तुसीं सियाणे जिहड़े उर्दू पढ़े हो फारसी पढ़े हो वो समझोगे इस गल नूं। कहन लगे सिक्खी मंगन लग्या अरदास करी कि मैं सिक्खी कमांदिया सब दे चरना की तूड़ रहा, किते मेरा गुण हंकार ना बन जाए, किते मेरी कमाई मेरे अंदर दी खौमे ना बन जाए। एक दिन मैं अर्ज की सी कि गुरु साहब ने तो शब्द विच सानू रोशनी दी है। एक पासे कहते जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। ते जिहड़ा जप तप करता है ते जे किते अंदरों थोड़ा जिहा हिल जाए ओनू गुरु साहब कहते हैं अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार। उन्हें तप बड़ा किया। एक पासे गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं मन की माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गई। ते दूजे पासे कहने तीर्थ बरत अरदान कर मन में धरै गुमान। नानक नेफल जात ते जू कुंचर इशनान। कह लगे चंगा काम नहीं तू किया मौत आ गई। दूजे पासे कहने जिन्ना कीते अंदरों हंकारी हो गए वो इंज हो गया जिवें हाथी नूं किसी इशनान कराया। बेनती जड़ी करना पिया कह लगो ते शब्द वरते हैं जदों असीं महरम लिखने कभी तक्यो महरम जदों पाया जाता उहदे अखरूप की ने उत्थे असीं मीम पहला शब्द वरत्या जाता खे ते रे मीम आपां लिखनी महरम। पर एक गल चेते रखो जे खे दे विच निक्की जी बिंदी पा दईए जिन्हों उर्दू विच असीं नुकता कहने, जे किते निक्की जी एक बिंदी एक बारी पेन की टच करके पिछा लै आओ वो महरम तो बन जाएगा मुजरम। भावें पेश उत्ते लगी होवे चाहे ना, क्योंकि जदों उर्दू सरल होकर पढ़ते हैं उदों जबर देर से पेश लाने की जरूरत नहीं महसूस करते, अपने आप ही सियाणे शब्दां नूं समझ जाते। वो कह लगे इकत नुकते होए जाए महरम मुजरम खैर खुवारी। जे महरम होवेगा महरम का अर्थ है दिल दे भेदी अंदर दी जानन वाले अंदर दे राजदार। ते चेते रखी जिदन मुजरम बन गया ना जिहड़ा दिल दा भेदी वो भी कटहरे विच खड़ा किया जाता है। मैं सोचा भी भाई साहब ने यह सिक्खी की मर्यादा दस दिया पहली तो क्यों कह दी कि इकत नुकते होए जाए महरम मुजरम खैर खुवारी। जे तो बनेगा महरम ते गुरु दर तो मिलेगी खैर, ते जे किते खौमे का निक्का जिहा नुकता लग गया मैं वड्डा सिख ते चेते रखी मुजरम बन जाएगा। ते मुजरम हमेशा खुवार हुंदे। सिक्खी तू कमानी किवें में? भाई साहब ने शब्द वरते ने फिर उस पौड़ी वाल आवां किहड़ी सिक्खी की दात मंगीए। कह लगे गुर सिक्खी गुर सिख सुन अंदर सियाणा बाहर भोला। शब्द सुर सावधान होए बिन गुर शब्द न सुनी बोला। सतगुरु दर्शन देखना साध संगत बिन अन्ना खोला। पैरी पैपा खा कोई चरण धोए चरनादक चोला। वाहिगुरु गुर शब्द लै पिरम प्याला चुप च बोला। चरण कमल चित भवर कर भवजल अंदर रहे नरोला। जीवन मुक्त सचावा चोला। केड़ी सिक्खी मंगनी है जिन्हों भाई साहब ने कहा गुर सिख भलके उठ कर अमृत वेले थर ना बंदा। गुर कै बचन उचार कै धर्मशाला की सुरत करंदा।
कहन लगे साध संगत भी जाए कै गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा शंका मनो मिटाए कै गुर सिखां दी सेव करंदा किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतंदा गुर सिखां नूं देकर पिछों बचिया आप खवंदा कली काल प्रगाशगर गुर चेला चेला गुर संदा दाता। मैं बेनती करना मैनू आ सिक्खी दी दात नहीं जेड़े तेरे शब्द बोल के कहते पे। हजूर कृपालू जी ने सिख की जदों उपमा की एक बेनती करके समाप्ति करनी है। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह उन्हां दे संबंध विच प्रोफैसर पद्म साहब ने एक बहुत सोहनी साखी दिती सी। देखो उन्हां दी सब तो पहली किताब सी। अज जे किते आपां गुरमत नूं लिखण वाले विद्वानां नूं पढ़ने जदों पुरातन विद्वान पढ़ी दे ने ना उन्हां विचों प्यारा सिंह जी पद्म उन्हां ने बहुत गुप्त खजाने जिहड़े ने प्रगट कीते सन। अज तੀਕਰ ਅਸੀਂ यही पढ़ लिया ना 52 कवि ने पर उन्हां 52 कवि लभ के एक एक उन्हां दी रचना भी दर्ज कर दी। 52 कवियां तो बिना 36 लिखारी हुंदे सन जिहड़े उलथे करदे सन ते ओह कहंदे सन 4 लिखारी हर वेले गुरु कलगीधर जी दे नाल रहिंदे सन। जो गुरु गोबिंद सिंह कृपालू उचारदे सन ओह नाल नाल अंकित करी जांदे सन। उन्हां किताब लिखी गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरबारी रतन ओह पढ़न वाली। उन्होंने सब तो पहली उन्होंने पुस्तक सी साडे गुरदेव ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੈਰ ਪਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਟਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਟਕਾ ਹੈ आज गुरु नानक साहब जी के नाम का ते नाल क्या जेड़े अकाल के अनन भगत सन। देखो कह लगे ये टका है जो पैसे देते गुरु नानक के नाम का जो अकाल के अनन सिख हैं। दूसरा टका दे के कह लगे ये टका है गुरु अंगद साहब का ते जिन्हां ने गुरु नानक साहब की सिक्खी नूं हुक्म मान के कमा लिया। दूसरा तीसरा देख के क्या एक है गुरु अमरदास जी के नाम का जिन्हां ने गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह के सामने लोक लाज छड़ के प्रेम न सेवा की। तीजा टका चौथा दिंदिया क्या एक है गुरु रामदास जी के नाम का जिन्हां ने कभी भी दुनियावी रिश्ते नूं गणाया नहीं केवल भावना नाल गुरु जान के सेवा की। चार टके दे दिते ते शब्द वरते पहला गुरु नानक साहब जो अकाल दे सिख ने गुरु अंगद साहब जो गुरु नानक साहब दे सिख ने गुरु अमरदास जेड़े गुरु अंगद साहब दे सिख ने गुरु रामदास जेड़े धन गुरु अमरदास दे सिख ने। जदों अपनी वारी आई ते पिछे खत खिंचिया इहदे विच कोई दो रावां नहीं। कहन लगे महाराज तुसी अपने नाम का कहन लगे जे मैं सिक्खी कमान तुरिया वां समझ नहीं पई भी सिक्खी कमानी किवें। गुरु के सिखो कहना बहुत सौखा है। सिक्खी का किरदार सिक्खी का इखलास सिक्खी वाला जीवन ते जिन्हां ने सिक्खी कमाई उन्हां नूं फिर मेरे बाबे ने बाणी विच कहा कह लगे धन धन भाग इन्हां भगत जना जो हर नामा हर मुख कहतिया। धन धन भाग तिन्हां संत जना जो हर जस सरवणी सुनतिया। धन धन भाग तिन्हां साध जना उथे शब्द वरते हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया। धन धन भाग तिन्हां गुरमुखां शब्द वरते जो गुर सिख लै मन जिणतिया। अखीर ते कह लगे सब तू वड्डे भाग गुर सिखां के जो गुर चरनी सिख पढ़तिया। सब तो वड्डे भाग उस गुर सिख दे ने जो धन गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां भी जुड़िया ते शब्द की कमाई करदा पिया। मेरा दाता मेहर करे इसे सबजैक्ट नूं यतन करांगा कल नहीं तो 2 दिन होर इसे विषय नूं क्योंकि सिक्खी इन्ना विशाल विषय। मास्टर जी नूं किसे पुछया सी तारा सिंह उन्हां नूं कि सिक्खी पहला कि देश भगती पहला ते मास्टर जी ने कहा सी कहन लगे मैनू तू भुलेखे विच ना पा सिक्खी बहुत वड्डा घर है ते देश भगती एक निक्का जिहा कॉन्सैप्ट है। सिक्खी बहुत वड्डा विषय है। इहनूं आपां कल परसों जिन्ने दिन लगे यतन करांगे कि शब्द की टेक लगा सकीए। अज इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। आप संगत के दरम्यान साडे अति सत्कारयोग
संत बाबा लाभ सिंह जी आनंदपुर साहिब वाले वो भी आए हुए ने। आप संगत उन्हां दे दर्शन दिदारे भी करो। आप उन्हां दे कोल बैठ के सिੱਖੀ कमान की जांच देखो। जरा कमान तुरदा है समझ भी उहदे तो पैंदी है। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा